کہ میں تحریک انصاف کا موقف جان لیتا ہوں. سلیم سچوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم صاحب، ایم کیو ایم تو واضح کہتی رہی ہے، ماضی کی تقاریر موجود ہیں، وہ پرانی ایم کیو ایم ہو یا موجودہ ایم کیو ایم پاکستان ہو، وہ صوبوں کا مطالبہ کرتے رہے، خصوصاً کراچی اور حیدرآباد کو وہ کہتے رہے کہ ایک صوبے کی شکل دی جائے. اس میں پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان کافی تلخی بھی رہی. آپ کی جانب سے بھی، تحریک انصاف کی جانب سے بھی ماضی قریب کی ہم بات کریں تو ہزارہ کو صوبے بنانے کی حمایت کی گئی تھی، نہ کہ مخالفت. تو دو جماعتیں ایسی سامنے آئی ہیں جو کھل کر یہ توقع کی جا رہی ہے، ایم کیو ایم تو ہے ہی، کہ آپ بھی نئے یونٹس کے قیام کے حوالے سے حمایت میں ہوں گے. کیا تحریک انصاف کا موقف ہے اس میں؟ دیکھیں، پارٹی کا موقف کیا ہے وہ پارٹی فیصلہ کرے گی. جو موقف ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا. میں تو اپنا موقف آپ کے سامنے پیش کروں گا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں صوبوں کا قیام اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہونا چاہیے، مگر سب سے پہلے اس سے پہلے جو بنیادی ضرورت کا جو کام ہے وہ ہونا چاہیے. بلدیات کا ایک مؤثر نظام، ایک طاقتور اور مؤثر بلدیات کا نظام جو گلی گلی محلے محلے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. بلدیات کا نظام نہ پنجاب کے اندر ایک موجود ہے، نہ دیگر صوبوں میں ایسا مضبوط نظام موجود ہے. اور ہم جا رہے ہیں صوبوں کی طرف جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہی کریں گے، ہم کھانے والوں کی تعداد بڑھائیں گے. اگر ہم بنیاد کو چھوڑ کے صرف اوپر بلاک رکھ کے ہم منزلیں بنانے لگیں گے تو کام تو نہیں بڑھے گا سر. بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے بلدیات کے نظام کو مؤثر بنایا جائے، طاقتور بنایا جائے، اس کے بعد صوبوں کے لیے غور کیا جائے. آپ بتائیں اتنے ساری منسٹریاں ہیں، اس کے بعد میں اتنے سارے جو سیکریٹریز ہوں گے، پھر اتنے سارے کور کمانڈرز ہوں گے، پھر اتنے سارے ان کے گارڈز ہوں گے، پھر اتنے سارے یہ اخراجات قوم کے اوپر مزید بڑھیں گے. ایک تو ویسے ہی قوم 22 ارب ڈالر کا سالانہ کا اخراجات برداشت کر رہی ہے، جو کہ قوم کے گلے کے اوپر ایک ناسور کی طرح یہ اخراجات ہیں. اب مزید یہ اخراجات بڑھائیں گے تو اس سے کیا نتائج نکلیں گے؟ چلے اس طرح میں بات کر لیتا ہوں. اگر فار ایگزامپل پنجاب کے اندر کابینہ کے 50 اس وقت ممبران ہیں یا صوبائی وزیر ہیں پنجاب کے اندر، تو اگر اسے 3 یونٹس میں یا 4 یونٹس میں فیوچر میں تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے تو پھر 10-10 ہو جائیں گے. ظاہر وزیر جو ہوں گے ان کی تعداد بھی کم ہو جائے گی نا. پھر صحیح تو آپ کہہ رہے ہیں نا کم ہو جائے گی، تو آپ اپنا بات کر رہے ہیں. کیا وہ چھوٹے یونٹس کے لیے ایک ڈویژن جتنا جو یونٹ ہو اس کے لیے 50 تو نہیں وفاقی یا صوبائی وزیر ہوں گے؟ کیا یہ تقسیم کرنے سے پہلے، صوبوں کی تقسیم کرنے سے پہلے آئین کے اندر یہ ترمیم کریں گے کہ بھائی وزراء کی تعداد 5 ہوگی، 5 سے زیادہ نہیں ہوگی، سیکریٹریز جو ہیں وہی اتنے ہی 5 ہوں گے، 5 سے زیادہ نہیں ہوں گے؟ یہ تو دنیا بھر میں اس میں کوئی قدغن ہے نہیں نا. یہ چیزیں پہلے سے آئین کے اندر موجود ہیں. اتنے زیادہ منسٹر نہیں بن سکتے. اس کے باوجود آئین کی لمٹ کو کراس کر کے زیادہ منسٹر ہمارے پاس موجود ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. یہ تو ایک حقائق ہے کہ پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز اس وقت موجود بھی نہیں ہے. تو سلیم سچوانی صاحب، یہ محسن نقوی صاحب نے یہ بھی کہا ہے، جہاں یونٹس کی بات کی انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک کمرے میں بیٹھنا چاہیے. وہ ایک دن بیٹھنا پڑے، ایک ہفتہ، ایک مہینہ یا ایک سال یا جتنا بھی عرصہ، مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. تو تحریک انصاف کا موقف رہا ہے کہ ہم بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی. بانی پی ٹی آئی کہتے رہے ان جماعتوں کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہیں ہیں. تو مسائل کا حل کیا ہے؟ دیکھنا اس کی وجہ ہے، اگر آج آپ بغیر کسی پارٹی تفریق کے نارمل بندے کے انسان ہو کے بینگ اے مسلم اگر ہم سوچتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو آپ غور کریں 40 سال پہلے، اراؤنڈ 40 ایئرس اگو، پاکستان صرف 5 ارب ڈالر کی امپورٹ کر رہا تھا، تیل وغیرہ دیگر چیزوں کی، ڈیزل وغیرہ کی. اور آج پاکستان تقریباً 30 ارب ڈالر کی امپورٹ کر رہا ہے. صرف جو انرجی کے حوالے سے وہ 18 ارب سے زائد ہے. اور پاکستان کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی جو پاکستان نے حاصل کی تھی وہ صرف اس لیے نہیں کی تھی کہ ایٹم بم بنا کے ٹیبل کے نیچے رکھ کے ہم ڈول پیٹے کہ ہم کوئی ہم سے نہیں لڑ سکتا. ہم نے اس لیے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کی تھی کہ ساتھ ساتھ ہم عوام کو سستی بجلی دیں، ہماری انڈسٹری گرو کرے، ہم ملک کو ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملک کی طرف لے جائیں. اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا انہوں نے سستی بجلی کے ایگریمنٹس کو ہٹا کے مہنگی بجلی کے ایگریمنٹس کیے. یہ اس حد تک ظالمانہ ایگریمنٹس ہیں کہ پاکستان کی امپورٹ جو 5 ارب ڈالر کی تھی وہ تقریباً 30 ارب ڈالر پہ انہوں نے پہنچا دی. اس کے بعد 2013 سے لے کے 2018 تک 24,000 میگا واٹ بجلی ہمارے پاس ہونے کے باوجود نواز شریف صاحب نے 24,000 کے قریب تقریباً جو ہے نا بجلی اور معاہدے کر لیے. آج پاکستان کیپیسٹی کی مد میں صرف 5 ارب ڈالر کیپیسٹی کی مد میں دے رہا ہے اور 1-2 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے قدموں میں بیٹھا ہوتا ہے اور بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ہم. تو یہ تنزلی کی طرف لے جانے کے لیے، اس کو تنزلی سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو بیٹھنا چاہیے، یا جو تمام محب وطن سیاسی پارٹیوں کو اور تمام محب وطن لوگوں کو جو کہ حق میں جائے وہ
जनरल साहिबान हो, चाहे वो जर्नलिस्ट साहिबान हो, चाहे वो कारोबारी हल्के हो, सोचना चाहिए कि ये जो बुनियाद जिसको हमने गलत दीवार खड़ी कर दी है उसके ऊपर हम छत तामीर करने जा रहे हैं, तो हम जैसी भी छत तामीर करेंगे, जब हमारे पिलर ही टेढ़े होंगे तो हम कैसे उसको छत को सही कर पाएंगे। तो सबसे बेहतर जो हमारी जो कौमों की तरक्की और तामीर के लिए चाहिए होती है वो तवानाई होती है, और तवानाई को ही हमने तनज़ुली का जरिया बना लिया अपने मुल्क के अंदर में। सबसे पहले हमें इसको दूर करना होगा, इसके बाद ही हम जाके कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इसके लिए तरीकाकार क्या होना चाहिए? जो आपका दौरे हुकूमत वफाक का था उसमें उस चीज को तब्दील करने के हवाले से कोई कोशिश की गई हो? देखिए, उसके हवाले से बहुत ज़बरदस्त कोशिश की खान साहब ने, और आपको याद है कि 145 रुपए के ऊपर जो है ना उन्होंने डॉलर को ब्रेक लगाया गया, इससे ऊपर हम डॉलर से आपको पेमेंट नहीं करेंगे। तो आज जो अगर पाकिस्तान जो बचा हुआ है तो वो खान साहब के उस अक्लमंदाना फैसले की वजह से बचा है, वरना जिस तेजी से इसके बाद डॉलर की रेट की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि उन मुआहदों को कैंसिल करके आप अपने मुआहदे कर। पहले बात को आप समझें, अगर ये 145 रुपए पे नहीं 145 रुपए पे नहीं रोका होता खान साहब ने, तो आज आप 280 रुपए इनको पेमेंट कर रहे होते, 280 के हिसाब से पेमेंट हो रही होती। तो आप बताओ क्या पाकिस्तान मुतमल हो सकता था इसका? यानी 5 अरब डॉलर की जगह हम 10 अरब डॉलर कैपेसिटी की मद में दे रहे हो, तो क्या पाकिस्तान मुतमल हो सकता था इसका? 30 अरब डॉलर 25 अरब डॉलर की इन्होंने पहले भरा दी है। और इस तरीके से पाकिस्तान को जब दबोने के लिए मैं थोड़ी देर पहले ही आपको कहा कि बगैर किसी पार्टी के, बगैर किसी, सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान बन के हमें सोचना होगा। और पाकिस्तानी मुसलमान बन के अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान हमारा तरक्की करे, तो सबसे पहले हमें अपने तवानाई के मसलों को बेहतर करना होगा। कैसे? मतलब इसको खत्म कर दें आप? देखिए, इस मुआहदे के अंदर में जो कैपेसिटी के मुआहदे में है, जो न्यूक्लियर के थ्रू बनाना है उस पे जाएं। न्यूक्लियर के आप थ्रू जा सकते हैं, आप विंड्स के थ्रू जा सकते हैं, आप जो है वो पानी के जरिए जा सकते हैं, बहुत सी चीज़ों के जरिए जा सकते हैं। आप न्यूक्लियर आपकी ज़रूरत है। जिस दौर में इंडिया पुरअमन न्यूक्लियर प्लांट लगा रहा था अमेरिका के साथ मिलकर, उस दौर के अंदर पाकिस्तान जो IPP से मुआहदे करके महंगे जो है ना वो कमीशन खड़े कर रहे थे हमारे सियासतदान। उसको तब्दील नहीं किया ना लफ्जी तौर पर। तो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा अच्छा ये होना चाहिए, लेकिन जब अपनी दौरे हुकूमत था तो उसको क्यों नहीं किया? आज डोनाल्ड ट्रंप माय डियर वजीर आजम, माय डियर फील्ड मार्शल के नारे लगा रहा होता है, मगर इंडिया को उसने अपॉर्चुनिटी दी है कि वो रशिया से सस्ता तेल दे, न सिर्फ सस्ता तेल अपने लिए रखे बल्कि दुनिया को भी बेचे वहां से अपनी रिफाइनरी। हम रशिया से तेल लेके यूज नहीं कर सकते। वो आप क्यों डिमांड नहीं करते इनसे कि हमें भी इक्तिसादी अपॉर्चुनिटी मिले? रशिया से अगर लेंगे तो उससे छोड़ के मुल्क का नहीं सोचेंगे, वो फर्नेस ऑयल नहीं होता। टेक्निकली थोड़ा सा बताने की जरूरत है। फर्नेस ऑयल नहीं, उसको यहाँ पे प्योरीफाई करना पड़ेगा। मैंने वही अर्ज किया उनकी रिफाइनरियों में, मैंने आपसे यही अर्ज किया उनकी रिफाइनरियों में। तो सर रिफाइनरी लगाए ना, ये भी कौन मना कर रहा है इनको? किसी ने रोके हुए तो नहीं? अगर सस्ता पेट्रोल मिल रहा है तो आप लगाए, रिफाइनरी लगाए ना। वो कह रहे हैं कि आसान कर दे मामला। बात ये कि बड़े आका साहब इनके जो है वो परमिशन देंगे इनको। ठीक है सलीम सचवानी साहब, क्या ऐसा करने जा रही है तहरीक इंसाफ? 5 अगस्त को तो कहा जा रहा है ना एहतजाज होगा, खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा जलसा होगा और उसमें अगला लाहे अमल सोहेल आफरीदी देंगे। मुमकिन तौर पे वो अगला लाहे अमल क्या हो सकता है? और अगर मौलाना साहब आपके साथ खड़े होते हैं जो माजी में आपके रकीब रहे, अब वो जाहिर है उनसे मामलात दुरुस्त हो रहे हैं आपके, शौकत यूसुफ जई साहब ने दावा भी किया है, तो फिर वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ चढ़ाई करेंगे या मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ एहतजाज का तरीक़ाकार अपनाया जाएगा? अभी तक कुछ फाइनल हो चुका है कि करना क्या है? देखिए, पुरअमन एहतजाज करने वालों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है इनके दौरे हुकूमत में, ये सबके सामने आया है। कश्मीर के अंदर पुरअमन एहतजाज हो रहा था, क्या किया गया ये सबके सामने है। मुल्क के में पुरअमन एहतजाज हो रहा था, रैली लेके जा रहे थे, उनके साथ क्या सलूक किया गया ये सबके सामने है। 26 नवंबर को पूरे टी चौक से लेके और लंबी कई किलोमीटर तक एक शीशा नहीं टूटा, वहाँ लोगों के साथ क्या सलूक किया गया ये पूरी दुनिया के सामने आया है। बलूचिस्तान में भी क्या किया जा रहा है ये सबके सामने है। आप ये मुझे बताएं कि 100 अरब डॉलर 4 साल के अंदर में मोहसिन नकवी साहब के बकौल के यहाँ से मशरक़ वस्ता मुंतकिल हो गए। ये 100 अरब डॉलर मशरक़ वस्ता गए, इसके अलावा यूरोप और दीगर ममालिक में अलग गए होंगे। तो आप मुझे बताएं, जिस हुकूमत की तरजीह ये हो कि मुल्क को किस तरीके से खाए, किस तरीके से लूटे, तो वो मुल्क किस तरह तरक्की कर सकता है। और दूसरी बात, आप एक चीज़ गौर करें कि पाकिस्तान में 10 डैमों के तामीर के ऊपर काम हो रहा था, उस डैमों की तामीर को इन्होंने रोक दिया। उसकी रकम मुख्तस थी, वो कहाँ गई ये भी किसी को नहीं पता।
डैम फंड कायम हुआ था, वो स्टेट बैंक को मुंतकिल कर इंडिया दिया ने गया था। पाकिस्तान का पानी रोक लिया है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। एक्ट ऑफ वार के नारे तो हमने बहुत सर सुने। अब तो उन्होंने इजाफी पानी छोड़ दिया है पिछले दो एक्ट चार ऑफ दिनों वार से। के हमने बहुत सुने। आज कभी मर्जी में आता है इजाफी पानी छोड़ देता है, मर्जी में आता है हमारे पानी रोक लेता है, मर्जी पहले पानी छोड़ के हमारे किसानों की फसलों का बेड़ा गर्क करता है, फिर पानी रोक के हमारे किसानों की फसलों का बेड़ा गर्क करता है। मुल्क की तरक्की किस तरह करेगा सर? आप पानी छोड़ता है उसके लिए आपने डैम नहीं बनाया, पानी रोका है उसके आपने कोई कार्रवाई नहीं की, तवानाई को आपने वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया। खान साहब के दौर के अंदर में नौकरियों की ये बात कर रहे थे, 45,50,000 नौकरियां प्राइवेट सेक्टर के अंदर में। एक मिनट मैं अपना सेक्टर बता दूं, मैं अपना सेक्टर बता दूं। पहले आप मौका बाद में दीजिएगा, पहले मेरी बात मुकम्मल हो इसी से रिलेटेड है ना, फिर आप आगे निकल जाएंगे। आप रोक के आप बता दीजिएगा, मेरी बात मुकम्मल हो जाए आप कर लीजिएगा अपनी बात। मैं रोक तो नहीं रहा हूँ आपको। 45,50,000 नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में पैदा हुई, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 20 अरब डॉलर से 35 अरब डॉलर तक चली गई, जिसके और हजारों नहीं लाखों मकानात के लिए लोगों ने बगैर उसके सूद के कर्जा लिया और अपने मकानात तामीर किए। इसके अलावा कितने मकानात जो तामीर शुदा थे जो आज तक पड़े हुए और उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। तो ये चीजें तो आपके सामने 20,000 है। लोग तकरीबन खान साहब के दौर में सिर्फ मीडिया की बात कर रहा हूँ, अखबारात बंद हुए, टीवी चैनल से लोग निकाले गए, जितना जो वफाकी हुकूमत के इश्तिहारात का पैसा था वो टीवी चैनल्स को मुंतकिल करने के बजाय वो पैसा अपने कीबोर्ड वॉरियर्स को मुंतकिल किया गया, जिसकी वजह से उन चैनल्स का लॉस हुआ और लोग निकाले गए। ये भी एक हकीकत है। ये हकीकत है, होगी, आपकी बात में मना नहीं करता, मगर दूसरी हकीकत भी आप देखें ना, मीडिया को गैर जरूरी इश्तिहारात दिए जाते हैं। वो गैर जरूरी डिसाइड होगा ये जरूरी है और ये गैर जरूरी है। सर एक सड़क बनती है उसके लिए 10 दफा इश्तिहार आ जाता है कि हमने ये सड़क बना दी। हुकूमत का इत्तलात का पैसा इसलिए होता है ना। 50-100 की जो है ना वो बाइकें तकसीम होती हैं, उसके लिए इश्तिहारात की ढेर लगा दिए जाते हैं कि भाई हमने बाइकें तकसीम की। लैपटॉप तकसीम होते हैं चंद हजार, इसके लिए हजारों अरबों के जो इश्तिहारात लगा दिए जाते हैं। सर इस तरीके से कौम का पैसा तो बर्बाद नहीं होना चाहिए ना। अगर मीडिया से कुछ लोग बेरोजगार हुए तो उनके लिए अल्टरनेट बंदोबस्त होना चाहिए था। उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए था, मगर अब गैर जरूरी तौर पे कौम का पैसा भी तो बर्बाद नहीं होना चाहिए ना सर। जी सर बता देना क्या तरक्की आपने करवाई है, कितने कर्जे आपने उतार दिए। आपने तो 43,000 अरब के कर्जे को 100 अरब के कर्जे 100,000 अरब के कर्जे पे पहुंचा दिया। आप अपनी कारकर्दगी दिखाए ना कि आपने कितनी इंडस्ट्रियां लगवा ली, आपने कितने बिजली के यूनिट कम कर लिए, आपने कितनी गैस तलाश कर ली। आप अपनी कारकर्दगी बताएं। ये बाकी बातें करना तो सर बात नहीं है ना। आप बता दें आपने क्या इम्प्रूवमेंट लाई है, आप इम्प्रूवमेंट बता दें। उनको बोल मैं आपको बता आप अपनी इम्प्रूवमेंट बताएं ना, आप अपनी इम्प्रूवमेंट बताएं। हमने ये काम किए हैं, हम सुन लेते हैं ना हम क्या। तब 16 रुपए का यूनिट था, आज 60 रुपए का यूनिट है सर। सुन तो लेना, बात तो सुन ले मजबूर, आप जरा मेहरबानी करें। सर मैं सुने जा रहा हूँ, आपको ज्यादा टाइम मैंने सुनने में दिया मैंने आपको, और आप बोले जा रहे हैं झूठ पे झूठ। तो इस तरह नहीं होता है सर, वो आप बोले झूठ मगर इतना भी ना बोले। एक मिनट सचवानी साहब सुन तो लें, अली अकबर गुज्जर साहब कहना है। 24,000 मेगावाट बिजली होने के बावजूद भी अगर बिजली बंद होती थी तो 24,000 मेगावाट को मेंटेन करने की जरूरत थी, न कि 24,000 मेगावाट के और बिजली के लिए जानबूझ के पैदा किया गया था। ये बुरहान जानबूझ के पैदा किया था ताकि 24,000 मेगावाट की बिजली मजीद दी जाए और पाकिस्तान को कर्जों के बोझ तले मजीद डुबोया जाए, अवाम को बर्बाद किया जाए और पाकिस्तान को तबाह किया जाए। ये पाकिस्तान की तबाही की साजिश थी जो आप लोगों ने की थी। सचवानी साहब सुन ले, अभी सुन लेंगे तो जरा आप चुप करें। अली अकबर गुज्जर साहब जी जी बोलिए। हक़ाइक़ को छुपाएंगे तो किस तरह सुने सर? मैंने कहा अब हक़ाइक़ को तो नहीं छुपाए ना। सचवानी साहब एक मिनट जरा सुन ले। 18 घंटे बिजली बंद थी पाकिस्तान में, और आज भी बंद है सर बिजली पाकिस्तान में। आज भी पाकिस्तान के अवाम को बिजली नहीं मिल रही है। सचवानी साहब सुनने तो देंगे, आप सुनने ही नहीं देंगे, मौके पर नहीं आएगा। अली अकबर गुज्जर साहब कहाँ पे, कहाँ रहते हैं आप? आपका घर कहाँ है? आपकी रैस्ट कहाँ पे है? गार्डन में। गार्डन में बिजली बंद होती है वहाँ पे? तकरीबन मेरे एरिया में 2-2, 3-3 घंटे बंद होती है, मगर वहाँ पे पड़ल पाड़े की साइड है, वहाँ पे 6-6, 8-8 घंटे बंद होती है। हाँ तो वो जाके चेक करें ना कि वहाँ पे बिजली कितने % चोरी होती है। वहाँ जाके जहाँ पे 0% है, मेरे अच्छा साथ आप रख लें। आपकी इस बात की मैं तस्दीक कर दूं। एक मिनट रुके सर। ठीक है, हमारा वक्त पूरा हो गया, हमारा वक्त पूरा हो जनरल गया। मुशर्रफ के दौर में एक जर्मन एनालिस्ट को बुलाया गया था।
जनरल मुशर्रफ के दौर में, चलिए बात सुनिए, आपकी भी नॉलेज के लिए अच्छी बात है, ये आपके ऊपर इसमें तनकीद नहीं है। जनरल मुशर्रफ के दौर में एक जर्मन एनालिस्ट को बुलाया गया था कि वो देखे कि बिजली की चोरी कहाँ पर ज्यादा होती है, तो उसने जब एनालिस्ट किया, उसने तमाम तहकीकात की, तहकीकात के बाद उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 83% जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में ये चोरी हो रही है और 17% जो है वो कच्ची आबादियों में चोरी हो रही है। तो कच्ची आबादियों को तो बर्बाद किया जा रहा है, यहाँ गुर्बत, जहाँ 10,000 25,000 रुपए कमाने वाला होगा, मौक़िफ़ नहीं आ सका अली अकबर गुज्जर साहब का। और आप उसको अली अकबर गुज्जर साहब एक बिल भेज देंगे। 30 सेकंड, मैं अपने टाइम से 3-4 मिनट ऊपर चला गया हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ कह दें। 200 यूनिट के ऊपर 3,000 का बिल और 201 यूनिट के ऊपर 9,000 का बिल, ये आवाम के ऊपर ज्यादती नहीं हो, ज्यादती हो रही होगी, तो उसमें क्या होगा सर? लोग क्या करेंगे? बेचारे अपने बच्चों को खिलाएंगे, बिजली का बिल अदा करेंगे, उनकी सचवानी साहब आप बिल्कुल बोलने ही नहीं दे रहे ना। आप इंडस्ट्रियां मुंतकिल हो गई हैं बैरून ममालिक में। मैं कोशिश करूंगा सर के नेक्स्ट प्रोग्राम में इस पे तफसील से बात हो सके।